So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 42. Okay, and today we have to discuss the topic. What is the topic we have to discuss? Today we have to discuss the topic is refrigerators. Okay, so write down the heading refrigerators. Refrigerators. Okay, so this is our today's title, guys. Okay, refrigerators. Okay, so you see this is the diagram of refrigerators. Okay, you know that in household we daily observe the refrigerators. Okay, I think everyone have its home the refrigerators. Okay, so this refrigerator topic today we have to discuss, guys. Okay, so we start the topic of these refrigerators. Okay, so first of all I define the refrigerators. So what is the definition of the refrigerator? You see here how to define. So I am write down the definition. A refrigerators is a device which maintain a base temperatures which maintains a base temperatures less than surrounding temperatures is called as a refrigerators. Right. So I am write down here, guys, a simple definition of the refrigerator. What is a refrigerator? Is a device which maintain a base temperatures. A base temperature is less than surrounding temperatures is called as refrigerators. Okay, so हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर देखा है कि जो हमेशा टेम्परेचर को कैसा मेंटेन करेगा, कम, किससे कम मेंटेन करेगा बच्चों, सराउंडिंग से. यही हमारी सिंपल डेफिनेशन है रेफ्रिजरेटर की. अब रेफ्रिजरेटर में क्या क्या होते हैं देखिए कंपोनेंट्स. व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स? सो क्या क्या होता है उसके अंदर मेन कंपोनेंट देखिए. पहला उसके अंदर कंपोनेंट्स है कंप्रेसर्स. ओके, कंप्रेसर्स. देन I show this diagram. If you observe, so this is the block diagram of the refrigerators. Okay, refrigerator operating system. What are these components? I draw here compressors, then condenser. Okay, then expansion valve, or another name for this capillary tube. Tubes. Okay, and another is very important. What is evaporators? If you observe in this diagram, guys, also I show this all these components here. You observe in there what is compressor, condenser, evaporators, capillary tube. Okay, capillary tube, another name is what is expansion valves. So we saw this diagram. I have now just draw the block diagram of this components here. So let's you see here. I am draw these components, all the components here. So first of all I draw the diagram of the compressor will be here. Suppose this is the compressors. Okay, I draw the diagram here, the block diagram. Suppose this is the compressors. Yes or no? Yes. This is compressor. So for operating the compressor, what is there is a work is required.
We know that for operating the compressor, the work is required will be there. So this is the compressor, guys. I write down the name. This is a compressors. Okay. And generally in a refrigerator, which type of the cycle will be used? Vapor compressions, refrigerant cycles. Okay. This vapor refrigerant cycle is used in our household refrigerators. उसके अंदर जो वर्किंग फ्लूइड होता है, अमोनिया या फिर फ्रियॉन है, उसको हम कहते हैं बच्चों रेफ्रिजरेंट. और वेपर को क्या कर रहा है, वो कॉम्प्रेस कर रहा है, इसलिए हमने इसको कहा वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल. ये डिटेल है बहुत, वेपर कॉम्प्रेशन है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल है, लेकिन जनरली इन आवर रेफ्रिजरेटर the majority use of the which cycle? Vapor compression refrigerant cycles will be there. Okay, so this is the compressors. Then from the compressor, what is there is a what is then I draw here the diagram of the condensers. There is a condenser will be there. This is the condensers. Yes or no? Yes, this is the condensers. Condenser. Okay, then after the condenser, what is, guys? Then there is a expansion valve will be there. I draw the diagram of the expansion valves. This is the expansion valve, guys, or capillary tubes, whatever we called. This is the expansion valve. Expansion wall will be there. Okay, then after the expansion walls, what is there? Then after that there is a evaporators. So I draw these portions. This is the evaporator portions, and now cycle will be complete, this ones. So this is the evaporators. Okay, so I draw the complete block diagram of the refrigeration system. Okay, refrigerator. What is the main components? Compressors. This is the compressor. Condensers, expansion valve, and absorption valve is nothing but the capillary tube, and another is the evaporators. So if you observe this one, you can observe this is nothing but what is the closed cycles. This is the what is closed cycles. Yes or no? Yes. If you observe, सो दिस इज द क्लोज. ये आपको कैसे दिख रही है बच्चों? क्लोज दिख रही. अब यहाँ पे देखिए क्या है कि कॉम्प्रेसर से क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ से कॉम्प्रेसर से हमारे पास में आएगा हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट्स. बराबर है, क्योंकि कंप्रेसर क्या करेगा, वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा. तो कंप्रेसर से क्या निकला? हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट. इसलिए हमने क्या नाम रखा है हमारे साइकिल का? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल्स. नाउ दिस हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट साइकिल इज पास वेयर? इट इज पास इनसाइड द कंडेंसर्स. कंडेंसर में जाएगा. कंडेंसर का काम है हीट रिजेक्शंस. दिस इज क्यू आर. यहाँ से क्या होंगी बच्चों? हमेशा कंडेंसर से हीट रिजेक्ट. जब भी आप एयर कंडीशन सिस्टम देखेंगे, आप वो एयर कंडीशन सिस्टम के पास से जाएंगे तो आपको ऐसा एकदम गर्म लगता है. तो वो हीट कहाँ से आ रही है बच्चों? कंडेंसर से आ रही. कंडेंसर को हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो वो हीट कहाँ पे आती है? सराउंडिंग में. तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगता है? एकदम हॉट लगता है. ओके, सो दिस इज द कंडेंसर्स. कंडेंसर फंक्शन ऑफ द कंडेंसर टू रिजेक्ट द हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. अब जैसी ये रेफ्रिजरेंट की हीट निकल जाएंगी तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट काय के फॉर्म में हो जाएगा बच्चों? लिक्विड के फॉर्म में. तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा, ये चलेगी सराउंडिंग में. मैं यहाँ पे लिखता हूँ सराउंडिंग्स. दिस इज द सराउंडिंग्स. द हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर. अब ये रेफ्रिजरेंट के अंदर की हीट निकल गई जो सराउंडिंग में चलेगी. अब यहाँ से जा रहा हमारे पास में लिक्विड रेफ्रिजरेंट्स, लेकिन वो भी कैसा है? हाई प्रेशर में है. हाई प्रेशर्स, लिक्विड हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट्स. बराबर है बच्चों? देखिए हाई प्रेशर वेपर आया, कंडेंसर ने क्या किया? उसकी हीट निकाल दी, सराउंडिंग में भेज दी.
जैसी उसमें की हीट निकल गई वो काय में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, उसका प्रेशर कैसा है, हाई। फिर उसके बाद में ये रेफ्रिजरेंट का एंटर हो गया बच्चों एक्सपांशन वॉल में, उसको कहते हैं हम कैपिलरी ट्यूब में। और यहाँ पे फिर अब कौन सी प्रोसेस होंगी, यहाँ पे प्रोसेस होंगी अभी थ्रोटलिंग प्रोसेस। कहाँ पे, एक्सपांशन वॉल में। देयर इज व्हिच प्रोसेस विल बी देयर, थ्रोटलिंग प्रोसेस। यस और नो, यस। यहाँ पे जो प्रोसेस होंगी बच्चों वो होंगी थ्रोटलिंग प्रोसेस। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस होने के बाद में क्या होगा कि सडनली प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, किसका, रेफ्रिजरेंट का। रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो सडनली कम हो जाएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस में। जैसे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो गया, अब यहाँ से वो कहाँ एंटर करेगा बच्चों, इवापोरेटर में। तो देखिए अभी लो प्रेशर्स लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स, क्योंकि एक्सपांशन वॉल ने क्या किया, उसका प्रेशर लो किया, प्रेशर लो हो गया तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो गया बच्चों, लो हो गया। अब ये टोटली जब एक्सपांशन वॉल से बाहर निकल गया, हमारे रेफ्रिजरेटर के पीछे देखना आपको ऐसी बारीक बारीक ट्यूब दिखेंगी। वो बारीक ट्यूब भी हमारी क्या है बच्चों, कैपिलरी ट्यूब है। वो कैपिलरी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एक्सपांशन वॉल कहते हैं। उसका क्या काम है, प्रेशर को कम करना, उसका काम है टेम्परेचर को कम करना। क्योंकि सडनली जब वो छोटे छोटे ट्यूब में जाएगा तो वहाँ पे कैपिलरी एक्शन का फिनोमिना हो जाएगा और उसका प्रेशर एकदम सडनली कम हो जाएगा। प्रेशर अगर कम होता है बच्चों तो टेम्परेचर भी क्या होता है, हमेशा कम होता है। ओके, दिस ऑल दिस थिंग्स हैपेंड इन अ वेयर इन एक्सपांशन वॉल्स। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स कहाँ एंटर करेगा, इवापोरेटर में। अब ये जो इवापोरेटर्स है ये कहाँ रखा है हमारे, अभी रेफ्रिजरेटर के अंदर है, जहाँ पे हम हमारे सब सिस्टम रखते हैं। बर्फ रहता है, एप्पल्स है, फ्रूट्स है, एवरीथिंग। और वो हर चीज को कैसा रखता है, ठंडा रखता है। किससे कंपेरिजन में, एटमॉस्फेरिक। अगर एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर अगर हमारे पास में 30 डिग्री सेल्सियस है तो फिर रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कितना रहेगा, रेफ्रिजरेटर रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस या फिर वॉट एवर द टेम्परेचर डिपेंडिंग आवर ओन चॉइसेस गाइज। यस और नो, यस। So this is the expansion wall which reduce the pressure and reduce the temperature of the refrigerants. Then after that this refrigerant enter where inside the evaporators. और जैसे ही वो evaporator में चले गया तो evaporator क्या करेगा कि उसके अंदर हमने जो चीज रखी है रेफ्रिजरेटर में उसमें की हीट निकालेगा। जैसे हमने अभी रेफ्रिजरेटर में वाटर रखा है बच्चों, तो वाटर का टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। अब वाटर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है, जैसे हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम। क्यों, क्योंकि वो वाटर में की हीट निकाल के हम कहाँ भेज रहे हैं, सराउंडिंग में। अब जैसे इवापोरेटर में के पास में क्या है, यहाँ पे एक वाटर की बॉटल है सपोज। अब ये वाटर में का टेम्परेचर हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सराउंडिंग में। अब सराउंडिंग में इसकी हीट अगर चली गई तो ये वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और वो कहाँ तक चल जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में पुट करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। बराबर है। अब ये जैसे बॉटल है, वाटर की रखी है फ्रीज में, इसका टेम्परेचर ज्यादा है 30 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वाटर का कम। क्योंकि ये वाटर में का टेम्परेचर हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। यही हमारी डेफिनेशन है। रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ स्पेस टेम्परेचर्स, जो उसके अंदर का, जैसे अब ये रूम है, ये रूम की अगर हीट हम बाहर निकाल देंगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा कि ज्यादा होगा, रूम का कम हो जाएगा। वही क्या है बच्चों, रेफ्रिजरेटर है। अब स्पेस टेम्परेचर इज लेस देन सराउंडिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटर्स। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। और वो सब कहाँ पे होता है, ये फिनोमिना इवापोरेटर सेक्शन में। मतलब इवापोरेटर में क्या होता है, जो भी चीज हमने रेफ्रिजरेटर में रखी उसमें की हीट निकाल के वो कहाँ भेज देगा, सराउंडिंग में। तो अब देखो इधर कैसा होगा ये फिनोमिना। अब आगे देखिए वो कहाँ से रिजेक्ट होती है। इवापोरेटर उसमें की हीट सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, निकालता नहीं, एब्जॉर्ब।
अब मैं बता रहा हूं निकालता, तो कैसे निकालता है अब देखो इधर। अब इवापरेटर वो कैसे निकालेगा, तो इवापरेटर के अंदर क्या फ्लो हो रहा बच्चों, लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा। अब ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब इवापरेटर में जाएगा तो इवापरेटर में जाने के बाद में वो ये पाइपलाइन से ऐसा गुजरेगा, बराबर है, जिसका ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, कम है। यहां पे हमने क्या रखा है, हमारा बॉडी रखी है, वाटर रखा है, कुछ भी रखा है, तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, उसमें की हीट एब्सॉर्ब कर लेगा। शाबाश, वो सिस्टम में की द रेफ्रिजरेंट विच एब्सॉर्ब द हीट फ्रॉम सिस्टम। As soon as this refrigerant is absorb the heat from this system or whatever the material we have to put up inside the refrigerator, this refrigerant liquid is absorb the heat. Okay, उसमें से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए अभी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब इसने क्या कर ली, यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट कर ली। किसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर ली बच्चों, वो पेस में से, जो पेस हमारे पास में यहाँ पे जो पेस है, वो पेस में से उसने हीट को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा हीट एडिशंस, बराबर है। हीट एडिशन किसको हो रही, ये रेफ्रिजरेंट को हो रही बच्चों, हीट एडिशन हो रही। हीट एडिशन किस में से हो गई, ये स्पेस में से। जो यहाँ पे हमने कोई भी चीज रखी है, जैसे मैंने ये वाटर की बॉटल रखी है, तो ये वाटर में से उसने हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, और वो किसको ट्रांसफर होगी, ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट्स को। ओके, देन एज सून एज दिस रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब द हीट, देन दिस रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म, इन विच फॉर्म, इनटू द इन वेपर फॉर्म। तो यू सी हियर, तो अब यहां पे हमको जो वेपर मिलेंगी वो कैसे रहेंगी, लो प्रेशर वेपर्स, लो प्रेशर वेपर्स। समझ में आया बच्चों, ये लिक्विड का कन्वर्शन काय में हो गया अभी, वेपर में। क्यों, क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट्स ने क्या कर ली, ये पेस्ट में की हीट एब्सॉर्ब कर ली। हीट एडिशन होगी किसके अंदर, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। अब उसमें हीट एडिशन होगी तो उसका लिक्विड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, वेपर में। क्योंकि हमारे पास में जो रेफ्रिजरेंट है, अमोनिया, प्रोपेन, फ्रियॉन, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, बराबर है। -10 पे बॉईल होना चालू हो जाएगा, तो -10 पे अगर बॉईल होगा तो वो काय के फॉर्म में होगा, वेपर में। लेकिन -10 हमारे लिए क्या रहेगा, एकदम ठंडा रहेगा, लेकिन वो रेफ्रिजरेंट -10 पे ही बॉईल हो रहा है। देखो -10 पे होते हैं, कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे होंगे, कुछ 2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये तो हमारे लिए क्या है, ये तो हमारे लिए ठंडा टेम्परेचर है। तो अमोनिया जब -10 या -5 पे ही अगर बॉईल हो रहा, तो वो जब बॉईल होगा, किसके वजह से बॉईल होगा, ये वाटर के वजह से। तो वाटर में की पूरी हीट निकाल लेगा, तो वाटर का क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे आइस बन जाएगा। लिक्विड फॉर्म में काय का कन्वर्शन हो जाएगा, वो आइस। तो ये हीट किसको चलेगी, वाटर में से ये हीट चली गई, वो हीट चलेगी बच्चों ये रेफ्रिजरेंट को, और ये यहाँ पे क्या बन गया, पूरा हमारे पास में आइस बन गया। समझ में आ गया। ओके, सो दिस लो प्रेशर वेपर वंस अगेन पास वेयर इनसाइड द कंप्रेसर। अब कंप्रेसर चलाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क डन यानी क्या होता है, ये QA माइनस QR गाइस, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शंस। अब कंप्रेसर का फंक्शन क्या है, कंप्रेसर का फंक्शन है प्रेशर को बढ़ाना, टेम्परेचर को बढ़ाना। इसलिए फिर कंप्रेसर के बाद में हमको क्या मिलेगा, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट सिस्टम विच हैव द हाई टेम्परेचर। बाद में और वो कहाँ चला गया, कंडेंसर में। कंडेंसर में जैसा आया वो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट की हीट निकल जाएंगी, वो कहाँ चल जाएंगी, सराउंडिंग में। तो कंडेंसर क्या कर देगा, वो रेफ्रिजरेंट को पूरा ठंडा कर देगा। तो ये मिल गया हमको लिक्विड हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट, ये ठंडा होकर लिक्विड मिल गया अमोनिया का। ये लिक्विड काय में घुसा, अभी ये घुस गया अभी एक्सपांशन वॉल में। तो एक्सपांशन वॉल क्या करेगा, उसको और ठंडा कर देगा, और उसका प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठंडा क्यों होगा, उसका प्रेशर लो हो गया। प्रेशर लो हो गया तो उसका टेम्परेचर भी लो हो गया। तो फिर ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट और कहाँ चले गया बच्चों, इवापरेटर में। इवापरेटर में जैसे जाएगा तो इवापरेटर में जो भी स्पेस है, यहाँ पे वाटर है, फ्रूट्स है, एप्पल्स है, इसमें की हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका कन्वर्शन हो जाएगा वंस अगेन इन वेपर फॉर्म एंड साइकिल विल बी कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। सो दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द evaporators, compressor, condenser and expansion valves.
अब जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हीट इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे मेजर होता है, थर्मल इफिशियंसी से। सो उसी तरह रेफ्रिजरेटर का भी परफॉर्मेंस मेजर होता है बच्चों कैसे, सीओपी से। सीओपी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये क्या है, चलो देखते हैं हम अभी। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ये नाम को भी। ठीक है, तो देखिए, सो वी नो दैट टू ऑपरेटिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड द रिजर्वायर। सो आई ड्रॉ दिस टू रिजर्वायर्स। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न द ऑल दिस कंसेप्ट ऑफ द रिजर्वायर्स। ये रिजर्वायर अब यहाँ से कहाँ कनेक्ट है बच्चों, एक रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा ये रेफ्रिजरेटर सभी बराबर है, दिस इज आवर रेफ्रिजरेटर्स, राइट। इसको पहले मिटा देते अपन अभी। सो लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स। क्योंकि हमको पता है कि हर चीज़ को ऑपरेट करने के लिए कितने रिजर्वायर होना, दो, एक होना हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दूसरा होना लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बोले तो सोर्स, लो टेम्परेचर बोले तो सिंक। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द दिस रेफ्रिजरेटर्स यू सी हियर, ओके, एंड देन आई ड्रॉ दिस डायग्राम हियर इज नाउ। सो लेट्स वी ड्रॉ दिस डायग्राम। व्हाट इज, वी ड्रॉ दिस रिजर्वायर। I draw these things, okay. Then after that guys, what is, there is a required the refrigerators will be there. This is the refrigerators. फिर उसके बाद में क्या लगेगा हमको, अनदर रिजर्वायर्स विल बी देयर। ठीक है, ये हमने बना लिए दो रिजर्वायर्स अभी यहाँ पे। सो दिस इज अवर रेफ्रिजरेटर्स, दिस इज अवर रेफ्रिजरेटर्स। ये क्या होता है बच्चों, सोर्स, सोर्स या फिर हाई टेम्परेचर्स। ये क्या होता है हमारा नीचे, सिंक, सिंक बोले तो लो टेम्परेचर्स, बराबर है। अब ये रेफ्रिजरेटर चलाने के लिए हमको क्या करना लगेगा, वर्क लगेगा, डब्ल्यू इन लगेगा। डब्ल्यू इन मतलब हमको उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, उसके सिवा काम करने वाला है क्या, नहीं। वी हैव टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी रेफ्रिजरेटर को, इसके अंदर हमारे पास में कौन से कंपोनेंट्स है, ये वाले कंपोनेंट्स है सब। ये पूरे डायग्राम को अभी मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए हमेशा कितने रिजर्वायर होना, दो। दुनिया में हर चीज़ ऑपरेट करने के लिए दो रिजर्वायर होना जरूरी है, उसके सिवा वो ऑपरेट ही नहीं होंगी, ओके। अब ये रेफ्रिजरेटर को हमने दे दिया क्या, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इसको कहते हैं हम डब्ल्यू इन, वर्क सप्लाई। अब जैसे इसको वर्क सप्लाई होगा, ये सिस्टम चालू हो जाएगी, ये वाली ऑटोमेटिक, इसका रोल हमको पता है। तो फिर अब यहाँ से देखिए ये क्या करेगा, हीट को रिमूव करेगा। सो दिस इज द हीट रिजेक्शंस, ओके। और ये है हमारा हीट एडिशंस, ओके। कोई की किताब में ये है हीट दिस वन, और ये है क्यू एच, या ऐसा भी कुछ बताया हमारे को, यस और नो, यस। ये है हमारे पास में टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टी एच, और यह है हमारे पास में लो टेम्परेचर टी एल, बराबर है। अब इधर देखिए बच्चों, हाउ इट इज वर्क। सो व्हेन यू सप्लाई द डब्ल्यू इन, ये डब्ल्यू इन क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्यू ए माइनस क्यू आर, बराबर है। अब
रेफ्रिजरेंट का जो परफॉर्मेंस है वो काय में मेजर होता है, सीओपी में। तो सीओपी की क्या डेफिनेशन है, अभी देखिए इसका सिंबल लिखता हूं मैं, सीओपी। सीओपी बोले तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट, इफेक्ट अपॉन वर्क इन मतलब वर्क इनपुट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द COP, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ द COP। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, इट इज कॉल्ड एज COP। अब ये डायग्राम मैं मिटा देता हूँ बच्चों, थोड़ा बाद में फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक मिटा देता हूँ अभी, ठीक है, फिलहाल में। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ COP। अब रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कौन सा है हमारा, देखिए अभी इफेक्ट कहाँ मिल रहा है हमको रेफ्रिजरेंट का इफेक्ट हमको यहाँ से मिल रहा है, ये सिंक। तो ये सिंक जो लो टेम्परेचर है ये है हमारा सपोज इवापोरेटर्स, बराबर है। और हाई टेम्परेचर कहाँ पे हमारा बच्चों, यहाँ पे। तो ये है हमारा सपोज कंप्रेसर्स। क्यों है, क्योंकि यहाँ से कंप्रेसर नहीं, ये है हमारा सपोज कंडेंसर्स। ये क्या है हमारा कंडेंसर, क्योंकि कंडेंसर का काम क्या है, हीट रिजेक्शन करना, QR। यस और नो? यस। ये हीट रिजेक्ट हो जाएंगी, कहाँ पे हो जाएंगी बच्चों, सराउंडिंग में। बराबर है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, Q एडिशन हो रही किसके अंदर, इवापोरेटर में से। अब इधर देखिए, अभी समझो कंसेप्ट को। अब यहाँ पे कैसा कंसेप्ट चल रहा है अभी देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एकदम अच्छे से समझिए आप लोग। अब मैंने अगर बता दिया ये हीट रिजेक्ट हो रही, अब ये रिजेक्ट हो रही मतलब ये हीट कहाँ पे जाके ऐड हो रही बच्चों, ये हीट ऐड हो रही कहाँ पे, सराउंडिंग में जाके। मतलब दिस QR इज रिजेक्टेड बट ऐड इन सराउंडिंग। तो इसको मैंने बता दिया, ये इसको अभी फिलहाल में Q एडिशंस समझाने के लिए, Q एडिशन इन सराउंडिंग। ये कहाँ पे जाके रिजेक्ट हो रही, सराउंडिंग में जाके, लेकिन ये QA क्या बन रहा, हीट एडिशंस। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी, अब ये इवापोरेटर की जो हीट थी, ये स्पेस में की हीट हमने क्या की, रिजेक्ट की, निकाली है। तो अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, अभी इसको लिखता हूँ मैं QR, हीट रिजेक्टेड। क्योंकि हीट रिजेक्टेड हमने कहाँ से की बच्चों, ये स्पेस में से की, हीट रिजेक्शन फ्रॉम अ स्पेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया हीट रिजेक्शन फ्रॉम अ स्पेस, QR इज इक्वल टू, अब ये हीट रिजेक्ट जो हुई ये स्पेस में से हुई है, जो स्पेस हमारे पास में था, ये हीट इसकी रिजेक्ट हुई, लेकिन ये हीट रिजेक्ट वाली किसने एब्जॉर्ब किया, ये रेफ्रिजरेंट ने। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, QR लिखा है। ओके, तो वो QR कहाँ पे आ गया बच्चों, यहाँ पे आ गया। कहाँ पे क्या है, QL भी दिया है। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना। अभी पिछले बार मैंने QA समझाने के लिए किया था आपके लिए, लेकिन ये स्पेस में से हम हीट को निकाल रहे, रिजेक्ट कर रहे, इसलिए ये यहाँ पे बन गया QR। फिर बाद में ये कंडेंसर में आके यहाँ से हीट रिमूव हो गई, मतलब हीट एडिशन हो गई। कहाँ पे होगी, हीट सराउंडिंग में, जिसका टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा है। किसमें की हीट यहाँ से रिजेक्ट होगी, अभी देखो, हाँ समझो, रेफ्रिजरेंट की हीट रिजेक्ट होगी, वो कहाँ चलेगी, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग में हम हीट को क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं, Q एडिशंस। इसलिए मैंने ये QA लिखा है यहाँ पे, समझ में आया ना। QA बोले तो हीट एडिशन इनटू द सराउंडिंग्स, और QR बोले तो हीट रिजेक्टेड फ्रॉम अ स्पेस। ओके, तो अब देखिए ये आ गया QR विच इज रिमूव फ्रॉम दिस लो टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज द स्पेस, बराबर है। और ये हीट एडिशन हम कहा कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज, ये हो जाएगा हमारे लिए
सराउंडिंग्स। यस और नो? यस। तो फिर अब समझ में आ गया आपको रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट कौन सा है हमारा? QR है, क्योंकि हम हीट को क्या कर रहे हैं, यहां से रिजेक्ट कर रहे हैं, किस में से? स्पेस में से निकाल रहे हैं हम उसको, हीट रिमूव और रिजेक्टेड फ्रॉम अ लो टेम्परेचर स्पेस। जितनी हम हीट यहाँ से रिजेक्ट करेंगे, निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उतना यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? कम होगा। और ये कौन कर रहा? रेफ्रिजरेटर। उसके लिए हमको क्या लग रहा? वर्क लग रहा। तो QR इज रेफ्रिजरेंट इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या बन गया हमारे पास में? हीट एडिशंस माइनस हीट रिजेक्शंस। हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शंस। हीट एडिशन कहाँ पे बच्चों? सराउंडिंग में है, सोर्स में है। सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। सपोज ये 30 होगा तो ये कितना होगा? -10 होगा। तो 30 किसका टेम्परेचर है? ये सराउंडिंग का। और ये इवापोरेटर ने क्या करा? ये स्पेस में का टेम्परेचर निकाल के कितना कर दिया बच्चों? -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इवापोरेटर के अंदर भी किसने किया? ये रेफ्रिजरेंट ने, क्योंकि उसने ये इसमें की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए मैंने पहले QA बताया, अभी मैं उसको QR बता रहा, क्योंकि ये स्पेस ने क्या की? हीट को रिजेक्ट कर डाला। किसको? रेफ्रिजरेंट को। ओके। बाद में फिर कंडेंसर ने क्या किया? हीट को रिजेक्ट किया, लेकिन वो हीट किस में जाके ऐड होगी? सराउंडिंग में। इसलिए ये सिंबल आया यहाँ पे QR। द हीट इज रिमूव फ्रॉम द स्पेस एंड QA मीन्स द हीट एडिशन इनटू द सोर्स, दैट इज सराउंडिंग. So COP is refrigerant effect upon work input. So therefore QR minus work input is how much? QA minus QR. Okay. So this is the COP of a refrigerators, QR upon QA minus QR. अब ये जो COP होंगी, द COP इज इक्वल टू 1 या फिर ऑलवेज ग्रेटर देन 1. जिसकी ग्रेटर देन 1 है वो रेफ्रिजरेटर एकदम अच्छे क्वालिटी का. ओके. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अपॉन अ रेफ्रिजरेटर्स. कंसेप्ट समझ में आया सबको गाइज? ओके. सो COP हमेशा कितनी रहती है? 1 या फिर COP रहती है ग्रेटर देन 1. ओके. So this is the whole things you have to explain in exam. You draw all this diagram, okay, and write down the some necessary points. COP, this formula, and these 2 points. Okay. So I stop here. If you like my videos, so please share my videos with your friends or another college friends, and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons. So stay at home, stay safe. Thank you very much.